बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस संडे क्लास में हम मेमोरी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके बिहेवियरल साइंसेस के सब्जेक्ट में भी आप पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में और फिनोमेनोलॉजी में। और जब हम किसी पेशेंट की असेसमेंट करते हैं तो उसके कॉग्निटिव फंक्शंस का एक अहम कंपोनेंट जो हम असेस करते हैं वो है मेमोरी। Let's discuss what are the stages of memory, how memory is formed, what are the types, mechanism, and lesions involving memory problems. Let me share the screen. First of all, what are the steps, the physiology, and the anatomy of memory formation? We've got different senses. We receive information through these senses, like the visual information is received by eyes. The auditory information is received by ears. Touch is received by skin. Taste is received by tongue. And the sense of smell is received by nose. So these are different modalities of sensation. So sense of vision, sense of hearing, sense of touch, sense of taste, and so on. The first step in the memory formation is that this sensation is converted into an electrical impulse. It is converted into electrical impulse. The structure that receives sensation is called a receptor. तो तमाम receptors, eyes photoreceptors हैं, ears जो है वो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, स्किन के ऊपर जो है टच रिसेप्टर्स है, टंग के ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स है, नोज में जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये सारे रिसेप्टर्स सेंसेशन रिसीव करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होती है। इस कन्वर्जन को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। So what is transduction? The conversion of a sense into electrical impulse. Now a sensory neuron carries this information in the form of electrical impulse to brain. It carries it to brain. Now this becomes a sensory memory. So the sensation received by receptor is converted into electrical impulse called transduction. And this electrical impulse is carried by sensory neuron into brain. And now this becomes a sensory memory. It becomes sensory memory. So how can we define sensory memory? Whatever the information that we receive through different senses, that becomes sensory memory. So sensory memory को हम कैसे define करते हैं? The information received through different senses is registered in brain as sensory memory. आपने कुछ देखा, ये सेंसरी मेमोरी है। आपने कुछ सुना, ये सेंसरी मेमोरी है। किसी चीज़ ने आपको टच किया, आपको किसी चीज़ का टेस्ट फील हुआ, या आपने जो है
कुछ सूंघा, कुछ स्मेल किया, ये सारे की सारी क्या है, ये सेंसरी मेमोरी है. दिस मेमोरी persists for a few seconds. How long does this memory persist? It persists for a few seconds. Persists for half second to 2 or more seconds, and then it fades and it disappears. How can it become short-term memory? If sensory memory, if sensory memory is given, it is given selective attention. If it is given selective attention, then it becomes short-term memory. It becomes short-term memory. And if it is not given selective attention, it fades within seconds. And the short-term memory, if it is rehearsed multiple times, it is rehearsed, revised in brain multiple times, it becomes long-term memory. तो जो कुछ घंटों, कुछ दिनों की बातें आपको याद हैं, उन्हें हम शॉर्ट मेमोरी कहते हैं. जो कई महीनों, कई सालों की बातें आपको याद हैं, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी. जो कुछ सेकंड्स के बातें आपको याद है, दैट इज सेंसरी मेमोरी, जो आपने डिफरेंट सेंसेस के थ्रू रिसीव की है. सो सेंसरी मेमोरी इटसेल्फ बिकम्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड द शॉर्ट टर्म मेमोरी व्हेन रिहर्स्ड बिकम्स लॉन्ग टर्म मेमोरी. आप किसी की कोई गुफ्तगू सुनते हैं, क्योंकि आपने सुना कैसे, थ्रू एयर्स आपने सुना, एक ऑडिटरी स्टिमुलस है. इट इज इनिशियली अ सेंसरी मेमोरी. आपको एक शख्स कोई बात बता रहा है, आप उसे डायरेक्टली सुन रहे हैं, मगर साथ ही घर में और लोग बात भी कर रहे हैं, वो भी आपको सुनाई दे रही बातें. टीवी चल रहा है, टीवी पर एक ड्रामा या एड चल रहा है, वो भी आप सुन रहे हैं. अब ये सारे के सारे सेंसेशंस ऑफ ऑडिटरी सेंसेशंस आप एक साथ सुन रहे हैं, मगर ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं बनेंगे. इसमें जिस बात को आप सेलेक्टिव अटेंशन पे करेंगे, वही शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बनेगी, वही सेंसेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बनेगी. और उसी बात को अगर आप रिहर्स करेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे, दैट बिकम्स लॉन्ग टर्म मेमोरी. नाउ लॉन्ग टर्म मेमोरी के मजीद हम फिर फीचर्स डिस्कस करते हैं, जब तक हम ये कुछ स्लाइड्स इसमें रिवाइज करते हैं कि मेमोरी सेंसरी होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. A sensation, if given selective attention, it be stored in short-term memory, and once it is rehearsed, if it is rehearsed, it becomes long-term memory. अब हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ मेमोरी. सबसे पहले जो भी सेंसेशन हम रिसीव करते हैं, दैट इज रजिस्टर्ड, दैट इज इनकोडेड इनटू माइंड, उसे हम कहते हैं इनकोडिंग. द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग, the process of putting information into the limitless reservoir of memory, into the limitless reservoir of memory. सबसे पहले वो जो सेंसेशन है, वो एक कोड बनेगा. आप जब भी कीबोर्ड, कंप्यूटर के कीबोर्ड का कोई की प्रेस करते, लगा आपने एल प्रेस किया, तो सबसे पहला स्टेप ये कि वो एल एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनकर, यानी ट्रांसडक्शन होगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनकर वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा, और कंप्यूटर उसे एक मीनिंग देता है, और उसे उस मीनिंग के फॉर्म में शो करता है, डिस्प्ले करता है या प्रिंट करता है. तो द फर्स्ट स्टेप इज इनकोडिंग. जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे ब्रेन में इनकोड होगी. इस इनकोडिंग की दो टाइप्स हैं, विजुअल इनकोडिंग, सिमेंटिक इनकोडिंग. इन दोनों में देखिए फर्क क्या है. जो फिश में इसकी डिस्क्रिप्शन दी कि सपोज एक
एक बंगलो है, एक हाउस है, एक फार्म हाउस है। आप इसके सामने गुजरते हैं और आप नोट करते हैं कि बहुत बड़ा घर है जिसके सामने एक लॉन भी मौजूद है और यहाँ पर कोई कार पार्क हुआ है, a very expensive car that comes into your notice. तो जो आप इसको रिकॉल करते हैं, आप कहते हैं कि एक येलो बंगले के बड़े बंगले के सामने गाड़ी खड़ी थी, एक्सपेंसिव गाड़ी। ये होगी विजुअल इनकोडिंग, जो आपने देखा एज इट इज आपने इनकोड किया। सो दैट इज इनकोडिंग द विजुअल इंफॉर्मेशन एज इट इज। अगला स्टेप है सिमेंटिक इनकोडिंग। इसको कोई मीनिंग देना, इसको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाकर इनकोड करना। लाइक अ फार्म हाउस और अ हाउस ऑफ अ वेरी रिच मैन। आपने इस तरह से उसको इनकोड किया, आपने इसे एक एब्स्ट्रैक्ट बना, आइडिया बना, एक मीनिंग दिया। तो दैट इज सिमेंटिक इनकोडिंग। तो उस बंगले को एज इट इज याद रखना कि येलो बंगला था, सामने लॉन था, उसके सामने एक रेड कार की या ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी थी। दैट इज विजुअल इनकोडिंग। उसे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के तौर पर इनकोड करना कि इट वाज अ हाउस ऑफ अ वेरी रिच पर्सन। ये सिमेंटिक इनकोडिंग। सेकेंड स्टेप मेमोरी का है। पहले स्टेप आपने इनकोड किया, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने इनकोड की, आपने कोई गुफ्तगू सुनी, आपने ब्रेन में इनकोड की, आपने कुछ देखा, आपने इसे इनकोड किया। नंबर 2 स्टेप है स्टोरेज, जिसे हम कहते हैं रिटेंशन। अब उस इंफॉर्मेशन को अगर आपने सेलेक्टिव अटेंशन दी तो वो आपके ब्रेन में स्टोर होने लगेगा। सो स्टोरेज इज द रिजल्ट ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। So you paid selective attention, it is stored, it is retained. And then it depends कि आप उसको कितना रिहर्स करते हैं। वो रिटेन होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ये रिटेन होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। सो इट इज रिटेन्ड आइदर इन शॉर्ट टर्म मेमोरी and if it is rehearsed also, it is retained in long term memory. If something is rehearsed multiple times, it is stored in long term memory. थर्ड स्टेप ये कि जब आपने इस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, अब इसे रिकॉल कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेप इज रिट्रीवल और रिकॉल। डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल से रिकॉल करते हैं, किस स्टाइल से रिट्रीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अब आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप चाय बनाएं, आप बार बार चाय बना चुके, यू डोंट हैव टू रिकॉल, यू डोंट रिकॉल कॉन्शियसली, आप अनकॉन्शियसली सब कुछ कर रहे होते हैं। आप सिखा जाए गाड़ी स्टार्ट कर ले, आप अनकॉन्शियसली गाड़ी स्टार्ट करके चला सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्किल्स होते हैं उन्हें हम अनकॉन्शियसली रिकॉल करते हैं। मगर आप सिखा जाए कि फला आइडिया किस तरह से था, लाइक कायद अज़म के 14 नुकात किस तरह से थे, करारदाद पाकिस्तान के बारे में आपसे पूछा जाए, आपसे किसी इम्पोर्टेंट इवेंट का पूछा जाए कि वो पॉलिटिकल इवेंट कैसे हुआ था, वो फ्लड जो आया था वो इवेंट किस तरह से था, वहाँ पर आप कॉन्शियसली रिकॉल करते कि हाँ इस तरह की बात हुई थी, इस तरह की बात हुई थी। तो वो कॉन्शियस रिकॉलिंग है, उसको हम अलग से नाम देते हैं, अभी हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो द रिकॉल में भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेमोरी। यहाँ पर एक बात लिखी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी इज रेजिलियंट टू अटैक, इट इज रेजिलियंट टू अटैक। इट मीन जब भी हमें कोई मेमोरी का डिसऑर्डर होता है, लाइक डिमेंशिया वगैरह, उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी इंटेक्ट रहती है मोस्टली। व्हाट इज अफेक्टेड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज मोर सेंसिटिव to disorders of brain. Long term memory is more
resilient, it is more resistant to attack by any brain disease or disorder, but the short term memory is mostly affected because of the disorders of brain. There's an there's a memory type called autobiographical memory. It is the memory that involves recalling information about self in personal identity, details of one's own life, अपना मैरिटल स्टेटस, अपने जॉब के बारे में बताना, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना, अपनी बायोग्राफी के बारे में बताना, ये सारी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है। मेमोरी के टाइप्स अभी हमने डिस्कस किए, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी कॉल्ड फ्लैश बल्ब मेमोरी। एक आगे पढ़ेंगे फ्लैश बैक मेमोरीज, वो इससे डिफरेंट है। हम डिस्टॉर्शन में पढ़ेंगे फ्लैश बैक मेमोरीज, ये है फ्लैश बल्ब मेमोरीज। बाज़ लोग इसकी एग्जांपल फिश में दिए कि बाज़ लोग यहाँ तक रिकॉल कर सकते कि जब उन्होंने सुना कि लेडी डायना डाइट, सो उस वक्त वो कहाँ पर मौजूद थे, क्या कर रहे थे, कौन सा दिन था, क्या डेट थी। आई कैन रिमेंबर दैट ऑल। तो इट इज़ अ फ्लैश बल्ब मेमोरी। आई कैन रिमेंबर व्हेन मुशर्रफ टुक ओवर, वो डेट क्या था, टाइम क्या था, मैं क्या कर रहा था, सराउंडिंग्स क्या थे। तो इट इज़ अ फ्लैश बल्ब मेमोरी। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मेमोरी जो जिसको आप अनकॉन्शियसली रिकॉल कर सके, और साथ ही उसके साथ अटैच्ड इमोशंस भी आप रिकॉल कर सके, उसके साथ अटैच्ड सराउंडिंग्स आप रिकॉल कर सके, ये फ्लैश बल्ब मेमोरी है। व्हेन बेनजीर भुट्टो वाज किल्ड, where were you where you were, what were the surroundings, ये सारे के सारे अक्सर लोग रिकॉल कर सकते, तो इट इज बिकम्स अ flash bulb memory. So a specific type of autobiographical memory in which a person becomes aware of an emotionally arousing event, like recalling all the details of surroundings and emotions when, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ। when Lady Diana died, Benazir Bhutto was murdered, and so on. मजीद हम मेमोरी के टाइप्स बनाते हैं एक्सप्लिसिट, डिक्लेरेटिव और रिलेशनल मेमोरी, और अगली होगी इम्प्लिसिट, प्रोसीजरल और स्किल्स मेमोरी। किसी चीज़ को रिकॉल करने में जब आप कॉन्शियस होते हैं, अपने कॉन्शियसली रिकॉल करना, उसे हम एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं। लाइक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी जो है, ये भी एक एक्सप्लिसिट मेमोरी है। इसे हम कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। किसी इवेंट को याद रखना, रिकॉलिंग एन इवेंट, it becomes episodic memory. What happened during the elections of 2018, अगर आपसे कहा जाए तो आपको शायद कुछ रिकॉल करना पड़े, आप कॉन्शियसली रिकॉल करके फिर ही बता सकते हैं कि उस वक्त क्या इवेंट्स हुए थे, राइट। तो ये एपिसोडिक मेमोरी है। इट इज एक्सप्लिसिट और डिक्लेरेटिव और रिलेशनल मेमोरी। इस एक्सप्लिसिट मेमोरी की एक टाइप तो एपिसोडिक मेमोरी है। इसकी अगली टाइप है सिमेंटिक मेमोरी। व्हाट इज सिमेंटिक मेमोरी? रिकॉलिंग फैक्ट्स, recalling general and specific knowledge, recalling general and specific knowledge, like अगर कहा जाए कि when was uh, Ziaul Haq murdered,
When did he die? When did his aeroplane crash? ठीक है, ये डेट रिकॉल करना, ये सिमेंटिक मेमोरी हो सकता है। या व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान? मैं फर्स्ट एग्जांपल डिलीट करता हूँ इसलिए कि when Ziaulok was murdered, ये फ्लैश बल्ब मेमोरी भी हो सकती है। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान? यू हैव टू रिकॉल इट। ये एक स्पेसिफिक नॉलेज है। हु इज द यूएस डिफेंस सेक्रेटरी? As I was asked during my interview uh, of Federal Public Service Commission before selection in PIMS Hospital कि who is the US Defense Secretary? So ये क्या है? ये semantic memory है। अगली है implicit और procedural और skills memory। एक ऐसी memory जिसमें recall करते वक्त आप conscious नहीं होते। The individual is not conscious to recall it. So it is implicit or procedural or skills memory. Like when asked to drive, you don't have to recall. When asked to cook something, you don't have to recall. When asked to write a letter, you don't have to recall. ये skills आपको याद रहते हैं, ठीक है? So it is implicit or procedure or skills memory. The anatomy and biochemistry of memory. Memory is mainly controlled by limbic system. और limbic system में भी जो structures ज़्यादा involved है वो है hippocampus mainly. अगला है एमिगडाला। इसके साथ डायनसेफेलॉन के कुछ स्ट्रक्चर्स लाइक मेमिलरी बॉडीज, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये भी इनकी भी कंट्रीब्यूशन है मेमोरी बनाने में। और अगर आप रिसेप्टर के लेवल पर चले जाए तो NMDA रिसेप्टर इन्वॉल्व है, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स, इसीलिए कि जो मेडिसिन देते हैं डिमेंशिया में वो कुछ मेडिसिन NMDA रिसेप्टर्स पर काम करते हैं, कुछ रिसेप्टर्स एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर पर काम करते हैं। तो एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर दैट इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग मेमोरीज। जो डिमेंशिया के पेशेंट्स उनमें एसिटाइल कोलिन का लेवल कम आता है। इसी तरह से कैल्शियम आयन इज कंसिडर्ड टू बी इन्वॉल्व इन मेकिंग मेमोरीज। तो ये एक एनाटॉमी है, ये स्ट्रक्चर्स और ये केमिकल्स और रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं इन मेकिंग memory and the normal physiology of memory. Memory impairment, amnesia क्या है, paramnesia क्या है? देखिए amnesia means a partial or total inability to recall, याददाश्त की कमी अगर आप उर्दू में से बताना चाहें। पार्शली आप कुछ नहीं बता सकते, रिकॉल नहीं कर सकते, कंप्लीटली नहीं रिकॉल कर सकते, दिस बिकम्स एमनीजिया। इसका कॉज ऑर्गेनिक हो सकता है, लाइक कन्फ्यूजनल स्टेट हो, डिमेंशिया की बीमारी हो, कोई और ऑर्गेनिक इलनेस हो, उसकी वजह से एमनीजिया हो सकता है। अगला कॉज साइकोजेनिक हो सकता है, साइकोलॉजिकली आप इतने ट्रॉमेटाइज्ड है एक ऐसे स्टेट में कि आपको चीज़ें याद नहीं आ रही, ये भी कॉज एमनीजिया का हो सकता है। एक ही नॉर्मल मेमोरी डिके, आपको कुछ चीज़ें वैसी याद है, आप रिहर्स नहीं करते, आप सेलेक्टिव अटेंशन पे नहीं करते, आपके लिए वो इवेंट्स अहम नहीं है, तो नॉर्मली भी वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें फेड होती जाती है। ये है नॉर्मल मेमोरी डिके। तो फेडिंग ऑफ मेमोरी इफ नॉट रिहर्स्ड इट इज नॉर्मल मेमोरी डिके, इट इज नॉट एमनीजिया। मेमोरी इंटरफेरेंस, अगर एक तरह की लर्निंग अगले प्रीवियस लर्निंग के साथ या अगले नेक्स्ट लर्निंग को अफेक्ट करे, इसे मेमोरी इंटरफेरेंस कहते हैं। इसके दो टाइप्स है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अभी की लर्निंग जो अभी आप लर्न कर रहे हैं, सपोज बुक में एग्जांपल ये दिए कि यू आर लर्निंग स्पेनिश दिस ईयर, सो स्पेनिश लर्न्ड दिस ईयर मे इंटरफेयर विद जर्मन टू बी लर्न्ड नेक्स्ट ईयर। जो अभी आप इस साल 2021 में स्पेनिश सीख रहे हैं, हो सकता है अगर आपका अगले साल जर्मन सीखने का प्लान हो तो दिस स्पेनिश में इंटरफेयर विद लर्निंग ऑफ जर्मन, या दोनों लर्निंग्स आपस में मिक्स हो सकती हैं, इनके सेंटेंसेस, इनकी वोकेबलरी मिक्स हो सकती है। इट इज़
प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अभी की लर्निंग बाद वाले लर्निंग को अफेक्ट करे, इट इज प्रोएक्टिव। अभी की लर्निंग प्रीवियसली लर्नड को अफेक्ट करे, इट इज retroactive interference. So new memories interfere with retrieval of old material. Like Spanish learned this year may interfere with German learned last year. अभी आप स्पेनिश सीख रहे हैं, पिछले साल आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी थी, जो अभी जो आप स्पेनिश सीख रहे हो सकता है ये प्रीवियसली जो लर्न जर्मन है उसकी रिकॉल करने में इसकी वजह से प्रॉब्लम हो। इट इज रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। साइकोजेनिक एमनीजियाज, किसी भी ट्रॉमा के बाद, किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डिस्ट्रेस के बाद अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती, इट इज़ साइकोजेनिक एमनीजिया या डिसोसिएटिव एमनीजिया या हिस्टेरिकल एमनीजिया। कुछ डिसोसिएटिव एमनीजिया के का एक फीचर ये है कि एक पेशेंट की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी वो लूज कर जाता है, नहीं बता पाता। द एमनीजिया विल बी फॉर पर्सनल आइडेंटिटी, डिटेल्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। इसे एक पॉइंट से हम डिफ्रेंशिएट भी करते हैं कि डिमेंशिया है या साइकोजेनिक एमनीजिया है। डिमेंशिया के पेशेंट्स की पर्सनल आइडेंटिटी मोस्टली इंटेक्ट रहती है, वाइल अगर पर्सनल आइडेंटिटी उसकी अफेक्टेड है, वाइल the normal long-term memory and personality they remain intact, while other components of memory and skills of daily work remain intact. This happens in psychogenic या dissociative या hysterical amnesia. एक है dissociative amnesia के साथ fugue आना. What is fugue? डिसोसिएशन में कुछ पेशेंट्स अपने नॉर्मल सराउंडिंग से बहुत दूर तक चले जाते हैं एंड दे हैव नो आइडिया अबाउट द वेयर अबाउट्स। वो बता नहीं सकते कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जाना कहाँ पर है, फिलहाल कहाँ पर मौजूद है। सो दे कीप ऑन वॉन्डरिंग अवे विदाउट एनी रिकॉल ऑफ द वेयर अबाउट्स। इसे कहते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। ये डिसोसिएशन में कॉमन है, स्किज़ोफ्रेनिक्स में भी हो सकता है, हेड ट्रॉमा, हेड इंजरी के बाद भी हो सकता है, ये किसी हद तक मेलिंगरर्स में हो सकता है। इफ समबडी इज चार्ज्ड ऑफ एन ऑफेंस, उनमें नॉर्मली मेलिंगरिंग के दौरान ये हो सकता है। सो हमें कॉमनली इस तरह के पेशेंट्स वार्ड में मिलते हैं जिनका की फैमिली ये बताते हैं कि पेशेंट बगैर किसी जूते के कई किलोमीटर्स तक और कई दिन तक गायब रहा। कोयटा से चला, हमें सक्कर में मिला, ठीक है, इस्लामाबाद से चला और हमें साहिवाल में मिला, खानेवाल में मिला। And the patient has got no recall of whereabouts and he keeps on going and he keeps on wandering. यह है dissociative amnesia with fugue. तो fugue is wandering away और उसको recall ना कर सकना, यह है amnesia में, जो कि dissociation में हो सकता है। Dissociative amnesia in those charged with serious offenses, and it can also occur, it is more common in those with prior history of head injury. कैटाथाइमिक एमनीजिया और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। देखिए हमें अक्सर प्लेजेंट चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, अनप्लेजेंट हमें ज़्यादा याद नहीं रहती। उसका एक ख़ास वजह ये है, उसकी एक ख़ास वजह ये कि हम कॉन्शियसली उन मेमोरीज़ को जो कि तल्ख होती है उन्हें सप्रेस करते हैं या अनकॉन्शियसली उन्हें हम फॉरगेट कर लेते हैं। कॉन्शियसली उन्हें फॉरगेट करना इसे कहते हैं सप्रेशन, अनकॉन्शियसली याद ना करना इसे कहते हैं रिप्रेशन। ये दो डिफेंस मैकेनिज्म थे जो फ्राइड ने बताए हैं। लाइक अगर किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ का इवेंट हुआ हो, स्कूल में बुलिंग का इवेंट हुआ हो, कोई और इस तरह का सैड इवेंट हुआ हो, तो दैट गोज इनटू कैटाथाइमिया, that goes into motivated forgetting. The process of losing information is called forgetting.
तो ये जो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, इसे हम कैटाटाइमिक एमनीसिया कहते हैं। कॉन्शियसली आप किसी चीज़ को भुला दें, ये सप्रेशन है, अनकॉन्शियसली करें, ये रिप्रेशन है। सो द इनएबिलिटी टू रिकॉल स्पेसिफिक पेनफुल मेमोरीज एंड इज बिलीव्ड टू अकर due to defense mechanisms of repression, it is catatonic. But it is unclear whether the repression is driven by conscious motivation to forget, that is suppression, or whether it is unconscious, that is primary repression. अगर आपने कैटाथाइमिया को एमनीजिया से डिफरेंशिएट करना है तो दो तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो पॉइंट्स पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैटाथाइमिक एमनीजिया ज़्यादा परसिस्टेंट होता है, इट इज़ मोर परसिस्टेंट। जो डिसोसिएटिव एमनीजिया है वो कुछ दिन तक रह सकता है, मोस्टली कुछ हफ्तों तक रह सकता है। मगर कैटाथाइमिक एमनीजिया, आपने किसी चीज़ को बुला दिया, कई सालों तक हो सकता है। कभी कभार हम पेशेंट से कुछ बातें जब चाइल्डहुड की पूछते हैं, तो लेट्स सपोज उनकी एज अब 28 ईयर्स है और वो इवेंट हुआ था 10 ईयर्स ऑफ एज में, तो इन बिटवीन जो 18 ईयर्स थे, 18 ईयर्स तक वो उसे भूल चुके होते हैं, हमारे पूछने पर वो बात उनको रिकॉल होती है। तो इट इज़ मोर persistent, the catathymic amnesia. Number two, it is more circumscribed. एक खास लोकलाइज्ड एक इवेंट के हवाले से कैटाथाइमिक एमनीजिया होता है, जबकि डिसोसिएटिव एमनीजिया इज मोर जनरलाइज्ड. So catathymic amnesia is more persistent and circumscribed than dissociation in that there is no loss of personal identity in catathymia. ये भी है कि there is no loss of personal identity. It is circumscribed, not generalized. Organic amnesias, acute brain disease में like कन्फ्यूजनल स्टेट हो, डिलीरियम जिसे हम कहते हैं, एपिलेप्सी हो, ब्रेन का कोई और इन्फेक्शन हो, हेड ट्रॉमा हो, उसकी वजह से एक पेशेंट को चीज़ें भूल जाए, ये एक्यूट ब्रेन डिजीज़ में हो सकता है। इसे ऑर्गेनिक एमनीजिया कहते हैं। इसके दो स्टेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैड अ फ्रेंड हु मेट एन एक्सीडेंट ऑन द वे व्हाइल गोइंग फ्रॉम कराची टू क्वेटा. इन दैट एक्सीडेंट सम ऑफ हिज फ्रेंड्स डाइड एंड ही सर्वाइव्ड. अब एक्सीडेंट से इमीडिएटली पहले, बिफोर मुझे एक्सीडेंट हुआ, उसके पहले क्या हुआ वो रिकॉल नहीं कर सकता. तो इन एबिलिटी टू रिकॉल दैट, इन एबिलिटी टू रिकॉल इवेंट्स बिफोर द इंसिडेंट, ये होगा रिट्रोग्रेड एमनीजिया. और उस एक्सीडेंट के बाद अब उसे चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ करता याद नहीं रहता. अब आफ्टर द एक्सीडेंट, इन एबिलिटी टू रिकॉल इवेंट्स, इट इज एंटीरोग्रेड एमनीजिया. So inability to recall after the incident, it is anterograde amnesia. ये जो एंटीरोग्रेड एमनीजिया जिसे अब मैंने एक्सप्लेन किया, ये ब्लैक आउट्स में भी हो सकता है. बहुत सिंपल है इसको समझना आपके लिए. इफ अ पर्सन इज हैवीली ड्रंक, अ पर्सन इज हैवीली ड्रंक, तो उसे उस दौरान कुछ भी याद नहीं रहता. इसे इस स्टेट को हम कहते हैं ब्लैकआउट. सो ब्लैकआउट्स अकर इन एल्कोहलिक्स. एंड ब्लैकआउट्स कैन आल्सो अकर इन डिलीरियम ड्यू टू इन्फेक्शंस, और एपिलेप्सी के दौरान भी हो सकता है. जिसे एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, उन्हें मोस्टली कुछ देर तक चीज़ें याद नहीं रहती. बिफोर फिट्स रिट्रोग्रेड एमनीजिया भी बाज़ औक़ात हो सकता है, एंटीरोग्रेड एमनीजिया भी मोस्टली हो सकता है. वो थी एक्यूट ब्रेन कंडीशंस. एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, ये तीन वर्ड्स यूज़ किए होंगे. इनमें फ़र्क क्या है? एक्यूट इज़ अ कंडीशन persisting for less than a month, for less
than a month. Subacute, a condition persisting for more than a month and less than 3 months. For more than a month and less than 3 months. If a condition persists for more than 3 months, it becomes chronic. A condition persisting for more than 3 months, it is chronic. तो सब एक्यूट कोर्स ब्रेन डिजीज में पेशेंट को एंटीरोग्रेड और रिट्रोग्रेड एमनीजिया दोनों हो सकता है. The patient is unable to register new memories. It involves both anterograde and retrograde amnesia. मगर दो चीजें इंटैक्ट रहती हैं. इमीडिएट रिकॉल इंटैक्ट रहता है. आप पेशेंट को कुछ बताएं तो विद इन अ फ्यू मिनट्स दोबारा उससे पूछिए, वो रिकॉल रहता है, मगर बाद में फौरन भूल जाता है. बट इमीडिएट रिकॉल मीन्स विद इन अ फ्यू मिनट्स आप पूछ ले तो इमीडिएट रिकॉल होगा. एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी रिमेन इंटैक्ट. पुरानी बातें भी उनको याद रहेंगी. दिस सब एक्यूट कोर्स ब्रेन डिजीज कंडीशन जिसमें एमनीजिया होता है, इट कैन अकर इन कोर्सैकोव्स सिंड्रोम. व्हाट इज कोर्सैकोव्स सिंड्रोम? इट इज एमनिस्टिक सिंड्रोम, a syndrome of memory loss that occurs because of thiamine deficiency, mostly occurring in alcoholics. It can also occur, this subacute condition can also occur in cerebrovascular diseases like ब्रेन के किसी वेसल की ब्लॉकेज हो जाए या रप्चर हो जाए. वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें हो सकता है ये कंडीशन. और ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया, हेड इंजरी एंड इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी. ईसीटीज इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी के बाद भी ये हो सकता है. सो इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी के बाद भी पेशेंट्स टेम्परेरीली रिट्रोग्रेड और एंटीरोग्रेड एमनीजिया का बताते हैं और बाद में वापस वो मेमोरी इंटैक्ट हो जाती है, वापस वो नॉर्मल हो जाती है. बाकी जो ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया है, ये हम फर्दर जब मेमोरी डिसऑर्डर्स इन डिटेल पढ़ेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में, उसमें इसके डिटेल्स आपके सामने आएंगे. इन लास्ट क्रोनिक कोर्स ब्रेन डिजीज, राइबोर्ड्स लॉ ऑफ मेमोरी रिग्रेशन अब इसमें अप्लाई करते हैं. इस लॉ के मुताबिक अगर किसी को क्रोनिक ब्रेन डिजीज हो, लाइक डिमेंशिया हो, ठीक है, डिमेंशिया इज अ क्रोनिक ब्रेन डिजीज. इट परसिस्ट फॉर मोर देन 3 months. इट परसिस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट. उसमें क्या होगा कि रिसेंट इवेंट्स अब पेशेंट भूल जाएगा, रिसेंट इवेंट्स, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्ट होती है. फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मंथ्स की मेमोरी अफेक्ट होती है, कुछ वीक्स की मेमोरी अफेक्ट होती है, फिर कुछ मंथ्स की मेमोरी अफेक्ट होती है, फिर इवन 1 साल पहले की मेमोरी, 2 साल पहले की मेमोरी, ये भी अफेक्ट होने लगती है. 1 year और मोर इसकी मेमोरी भी अफेक्ट होने लगती है. तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो शुरू में इनकी मेमोरी अफेक्ट होती है तो कुछ दिन वाली बात उसे याद नहीं रहती, फिर कुछ हफ्तों पहले वाली बात याद नहीं रहती, फिर कुछ महीनों पहले की बात, और कुछ फिर कभी कभार पिछले 1 साल की बात उन्हें याद नहीं रहती, उससे पुरानी मेमोरी ठीक रहती है. तो ये मेमोरी रिवर्स में आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट होती जाती है. इट इज कॉल्ड राइबोर्ड्स लॉ ऑफ मेमोरी रिग्रेशन व्हिच अकर्स इन क्रोनिक कोर्स ब्रेन डिजीज लाइक इन डिमेंशिया. इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अदर एमनीजियाज
बल्कि अदर एमनीजियाज भी आज पढ़ लेते हैं, पर जो मेमोरी डिस्टॉर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं। अदर एमनीजियाज में है कि जब किसी इंडिविजुअल को एनजाइटी हो, एनजाइटी में पेशेंट्स की अटेंशन और कंसंट्रेशन अफेक्ट होती है, उससे भी उन्हें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, दैट इज टेम्पररी। सो एनजाइटी एमनीजिया हम उसे कहते हैं। जो पेशेंट्स स्वेयर डिप्रेशन में होते हैं उन्हें भी चीज़ें याद नहीं रहती, इसे हम डिप्रेसिव स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं। अगर एक पेशेंट बहुत स्वेयर डिप्रेशन में है और उसे में उसकी मेमोरी अफेक्ट हो रही है, तो आपने उसे डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डिजीज लेबल नहीं करना, दैट इज डिप्रेसिव स्यूडो डिमेंशिया। तो जब आप डिप्रेसिव सीरो डिमेंशिया और डिमेंशिया में फ़र्क है कि डिमेंशिया इज़ नॉट रिवर्सिबल, डिप्रेसिव सीरो डिमेंशिया इज़ रिवर्सिबल। डिस्टॉर्शन ऑफ मेमोरी ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट संडे एट 10:30 AM इंशाल्लाह। सी यू देन। अल्लाह हाफिज़।